How to issue shares? For issuing shares, first of all, company used to issue the prospectus, right? When company issues prospectus, through prospectus, company invite general public. When company invite general public applies for the share, and along with the application, general public will pay the application money. So a share of rupees 100 each is not to be paid in lump sum, it is to be paid in installment. Application, allotment, first call, and so on. Second call and third call. Maximum 3 calls can be made, right? Application, allotment, calls. So the amount of share is not called in lump sum. It can be called in lump sum, but generally it is called in installment, right? Application, allotment, first call, and second call. When general public applies to the company, what we need to record all the transaction from company's point of view. We have to record each and every transaction from business point of view, from business entity assumption. We already started this in class 11th also. From accounting entity assumption or business entity assumption, all the transactions are to be recorded from business point of view. So from business point of view, business is receiving money, right? And applicant who is interested in investing the company, they'll invest in the bank. Bank is the mediator between the investor and the general public, between the investor and the company. Bank is the mediator between the general public and the company. The general public who is applying for the share, they will give the application money. So what company will pass the journal entry? Bank account debit to share application account. Bank increases as an asset and share application account. It is a liability. It is the liability of the company till this liability get converted into capital. So next entry is being application money transfer to capital. जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आया बेटा उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, so first entry is bank account debit to share application account and then share application to share capital. For example, A Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable rupees 20 on application. So 20,000 into 20, 4 lakh. This is the bank to share application and share application to share capital. Betu, share is a certificate, right? In which it is written that Mohan is the holder of 20,000 shares of rupees 100 each. अब मोहन को हमने शेयर तो दे दिया 100 का, उससे लिए हैं 20 रुपीज़, तो हमें मोहन से 80 रुपीज़ लेने हैं, राइट? हमें शेयर होल्डर से 80 रुपीज़ लेने हैं, तो हम शेयर होल्डर से अलॉटमेंट कॉल करेंगे. एक एप्लीकेशन ऐसा अमाउंट है जो पहले रिसीव होता है और फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है. रेस्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर टू बी कॉल्ड. हमें ड्यू करनी होती हैं पहले, तो हम पहले मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ये कंपनी के लिए एसेट है. जब तक ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता ये एसेट है, ठीक है? शेयर वो ऑलरेडी दे चुका है तो उसका कैपिटल बन चुका है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये ड्यू एंट्री हो गई, इसको कहते हैं ड्यू एंट्री. बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू ऑन शेयर्स, राइट? 20,000 इंटू 30, 20,000 शेयर्स हैं तो 20,000 इंटू 30. ये मांग रहे हैं हम शेयर होल्डर से कि हमने आपको 100 का शेयर दे दिया था जिसमें आपने 20 रुपीज़ हमको दिया था, 80 ड्यू है, 30 हमने मांग लिया उनसे. जब वो शेयर होल्डर हमको पे करेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड. Then we will call the first call, share first call account debit to share capital account, and then first call money is duly received, bank to share first call. Similarly, second call will make due the second call, share second call account debited to share capital account, and then bank account debit to share second call account. Okay,
इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता, जैसे हमने अलॉटमेंट मांगा और उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसको कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स, राइट. एंड इफ एनी शेयर होल्डर पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट इन एडवांस, that is known as calls in advance. I'll discuss calls in advance later on. Today I'll discuss about calls in arrears. Calls in arrears is the amount which is not received. What changes in the journal entry we'll see. First entry में कोई change नहीं, bank to share application. Second is equity share application to equity share capital account. Equity share allotment to equity share capital. Due किया, कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें नहीं पे किया, जो पे नहीं कर रहे उनको किस में डालेंगे, कॉल्स इन अरियर्स. सपोज 20,000 पे हमें 30 रुपीज़ लेने थे बेटा, जैसे वन शेयर होल्डर वॉज होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, तो 1,000 ने जो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया उसको कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स. 1,000 इंटू 30, 30,000. ऐसे अगर फर्स्ट कॉल नहीं पे करेंगे तो फर्स्ट कॉल में भी यही चेंजेस आएंगे. ड्यू एंट्री में चेंजेस नहीं आएंगे बेटा, ड्यू एंट्री वही रहेगी. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ड्यू एंट्री में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट कब होगा, जब हमें कोई शेयर होल्डर पे नहीं करेगा. एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, जब हमें कोई शेयर होल्डर कोई मनी पे नहीं करेगा क्या होगा, इट रिफर्स टू दी फोरफीचर ऑफ शेयर्स. हम शेयर्स फोरफीट कर देंगे. फोरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट. दैट इज इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, हिज शेयर्स विल बी कैंसिल्ड, राइट. शेयर कैंसिल कर रहे हैं बेटा, जब शेयर इशू किए थे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे. एंड शेयर कैपिटल इज टू बी डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट. सपोज आपने शेयर सेकेंड कॉल नहीं मांगा, तो शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल एंट्री नहीं करी, तो जब आपने कैपिटल को क्रेडिट ही नहीं किया तो आप डेबिट भी नहीं करोगे. किससे डेबिट होगा, कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा. टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स जो डेबिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे. सपोज 10 रुपीज़ का शेयर है जिसमें वो मुझे 6 रुपीज़ पे नहीं कर रहे, जो पे नहीं कर रहे वो कॉल्स इन अरियर्स. तो 10 में से उन्होंने 6 पे नहीं किया पर वो 4 ऑलरेडी मुझे पे कर चुके हैं, तो द अमाउंट विच इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड, राइट. कॉल्स इन अरियर्स इज द अमाउंट अनपेड, जो पे नहीं हुआ. एंड शेयर फोरफीचर इज द अमाउंट जो पे कर चुके हैं, पेड अप, जो वो हमें पे कर चुके हैं. 4 रुपीज़ वो हमें पे कर चुके हैं, 6 रुपीज़ उन्होंने पे नहीं किया. तो शेयर फोरफीचर इज द अमाउंट विच इज़ ऑलरेडी पेड एंड कॉल्स इन अरियर्स इज द अमाउंट विच इज़ अनपेड, राइट. 10 रुपीज़ कॉल्ड अप अमाउंट, 4 रुपीज़ शेयर फोरफीचर, कॉल्स इन अरियर्स 6 रुपीज़. शेयर फोरफीचर मेरा प्रॉफिट है बेटा जी. मैंने 10 रुपीज़ का शेयर इशू कर दिया था जिस पे मुझे 4 रुपीज़ रिसीव कर लिए थे मैंने शेयर होल्डर से, 6 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए थे. मैं उनको रिमाइंडर दूंगी, वो पे नहीं करेंगे तो मैं 14 डेज़ का क्लियर नोटिस दूंगी. और अगर वो 14 डेज़ के क्लियर नोटिस में मुझे पे नहीं करते तो मैं उनके शेयर्स कैंसिल कर दूंगी, फोरफीट कर दूंगी. दिस इज़ नोन एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स. अब जो अमाउंट वो मुझे पे कर चुके हैं 4 रुपीज़, मैं उनको रिटर्न नहीं करूँगी, मैं वो अमाउंट सीज कर लूँगी. दैट अमाउंट विल बी फोरफीटेड. इसीलिए उस अमाउंट को बोलते हैं शेयर फोरफीचर, राइट. ये हमारा प्रॉफिट है. ऑल प्रॉफिट्स आर टू बी क्रेडिटेड. तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर शेयर फोरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड हाउ टू री इशू द शेयर्स, बोथ द थिंग्स. री इशू मीन्स जो हमने फोरफीट किए थे दोबारा इशू कर दिया उनको. तो शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. तीनों पे री इशू होते हैं बेटा. व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट पार, बैंक टू शेयर कैपिटल. प्रीमियम मीन्स मोर देन दी फेस वैल्यू. 100 की चीज़ 110 में सेल हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट 110. शेयर री इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू शेयर कैपिटल अकाउंट
100 to securities premium reserve account 10. And if shares are reissued at discount, originally shares cannot be issued at discount, but forfeited shares can be reissued at discount. ओरिजिनली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन फोरफीटेड शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं. तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. उस लॉस को हम फॉरफीचर में डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को हम फॉरफीचर में क्रेडिट करते हैं, तो जो लॉस होगा तो उसको फॉरफीचर में डेबिट करेंगे. इसको डिस्काउंट नहीं बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, राइट? So shares can be reissued at par, premium and at discount. Par means at face value, premium means for more than the face value, discount means less than the face value. Okay? Now let us take one example of forfeiture of shares. And before that, one theory question, most important theory question. Can forfeited shares be reissued at discount? Yes. अभी हमने पढ़ा forfeited shares can be reissued at discount. If yes, to what extent? कहाँ तक? What is the maximum limit of discount? Forfeited shares can be reissued at discount, but discount can never be more than the credit balance of share forfeiture. क्या मतलब हुआ इसका? Credit balance of share forfeiture जो हमें रिसीव हो चुका है, that is the amount which had already been received on the shares which were forfeited. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका, बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा. A Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each for non-payment of allotment and call money of rupees 7 per share. 7 per share पे नहीं किया, 10 में से 7 पे नहीं किया बेटा, तो कितना पे कर दिया? 3 रुपीज़ पे कर दिया. ठीक है, तो हम इसको कितने डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं? जिस शेयर पे मुझे 3 रुपीज़ रिसीव हो गया था, उनको मैं मैक्सिमम 3 के डिस्काउंट पे रीइशू कर सकती हूँ. मैं 1 के डिस्काउंट पे भी रीइशू कर सकती हूँ, मतलब 9 रुपीज़ पे रीइशू कर सकती हूँ. मैं 8 पे रीइशू कर सकती हूँ, मतलब 2 रुपीज़ का डिस्काउंट भी बेयर कर सकती हूँ. मैं 7 पे भी रीइशू कर सकती हूँ, मैं 3 का डिस्काउंट भी बेयर कर सकती हूँ, राइट? यानी कि मैं इनको कैन बी रीइशूड फॉर अ मिनिमम प्राइस ऑफ 7 से कम पे रीइशू नहीं कर सकती. मैक्सिमम में इसको 100 पे 100, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है बेटा, कितने पे भी मैं इसको रीइशू कर सकती हूँ. शेयर्स कैन बी रीइशूड एट प्रीमियम, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू अच्छी है तो शेयर्स कैन बी रीइशूड एट फॉर मोर देन दी फेस वैल्यू, लेकिन 7 से कम पे नहीं रीइशू कर सकती. मैं 6.99 पे, लेस देन 7 पे रीइशू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 3 से ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकती. तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट? It can never be more than the credit balance of share forfeiture. That is the amount which has already been received on such shares. Right? In case of any doubt, ask me. After reissue of shares, जो share forfeiture का credit balance बचेगा हमारे पास. मैंने जब forfeit किए थे मेरे पास 3 का profit था, reissue किए तो 1 के loss पे reissue किए, तो मेरे पास 2 rupees profit बच गया. ये मेरा capital profit है. There are two kind of profit, you all know, revenue profit and capital profit. Revenue profit, which is the recurring profit on sale of goods. Capital profit जो recurring profit नहीं है बेटा, कभी कभी होता है. And all capital profits are transferred to capital reserve. तो share forfeiture का जो credit balance है वो भी capital reserve में transfer हो जाएगा, right? Now let us take one example of forfeiture and reissue of shares. B Limited forfeited 4,000 equity shares, ये number of shares हैं, of rupees 10 each for non-payment of allotment and first call of 3 and 2. Allotment 3 and first call 2, ये पे नहीं किया. Final call of 1 not yet called, अभी कॉल ही नहीं किया 1 रुपी, मतलब 10 में से 1 रुपी कॉल नहीं किया, तो 9 रुपीज़ कॉल किया. 9 में से 5 उन्होंने हमको पे नहीं किया, तो कितना पे कर चुके? 4 पे कर चुके. तो शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा बेटा? 4,000 इंटू 9. कॉल्स इन अरियर्स में 4,000 इंटू 5. शेयर फॉरफीचर में 4,000 इंटू 4. 3,000 शेयर्स आर रीइशूड एट ₹7 पर शेयर एज 9 पेड अप. 9 का शेयर 7 में रीइशू हो गया, मतलब 2 का लॉस हो रहा है, तो 3,000 इंटू 7 बैंक अकाउंट डेबिट. 3,000 इंटू 7
Share forfeiture account debit 3000 into 2. 2 share capital account 3000 into 9. मेरे पास 4 रुपीज़ का प्रॉफिट था बेटा, 5 रुपीज़ पे नहीं किए थे, 4 रुपीज़ पे कर दिए थे. 4 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2 रुपीज़ का लॉस है. इसका मतलब मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. एंड आई रीशूड 3000 शेयर्स. तो 3000 into 2, 6000 is transferred to capital reserve. In case of any doubt, please ask me. If out of these shares, अगर ये 3000 शेयर्स रीइशू हुए होते at ₹9 per share, if these 3000 shares are reissued at ₹9 per share, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कितना होता? 3000 into 9. शेयर फॉर फीचर में 3000 into 1. जब कुछ भी नहीं गिवन होता तो शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट आता है 3000 into 10, राइट. 3000 into 9, 3000 into 1, 2 शेयर कैपिटल 3000 into 10. तो रीइशू हो जाते हैं 27,000, 3000 एंड दिस इज द रीइशू एंट्री. अब मेरे पास प्रॉफिट कितने का था? 4 रुपीज़ का था बेटा. लॉस है 1 रुपी का, तो मेरे पास प्रॉफिट बच गया 3 रुपीज़ का. तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000 into 3. 9000 would be transferred to capital reserve. Right? In case of any doubt, please ask me. Thank you.